Hello everyone, welcome back to the online lecture series for UGC NET, GSET and SET. My dear student, in the previous lectures we have done one chapter, one concept of accounting and auditing subject, and that is about share capital transaction, in which we have learned in very detail about shares, its types, capital of share capital, and much more about the concept. Today we are shifting to one more topic of the chapter accounting and auditing. So today we will focus on basics of accounting and auditing. Probably you will have one question from this unit. So let's do the basics first. Now see, the aim of this session is to understand the concept of accounting. हम क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो ही आपको ये टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है. आप चाहे कोई भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो ये समझना, ये पढ़ना, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. सी हियर. सो एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन, आज का जो सेशन है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा? हम ध्यान रखेंगे कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग. वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज and to know the importance and difference of accounting and auditing. Now see, once we clarify the concept of accounting and auditing, you can easily differentiate between this. Clear? So let's start with the concept of accounting. Now see here, there are two words. One is bookkeeping, another one is accounting. देखो अभी बहुत सिंपल वर्ड में अगर हम इन दो शब्दों को समझेंगे तो जो हम रेगुलर रिकॉर्ड रखते हैं दैट इज बुक कीपिंग. सिर्फ हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसको अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस से आप रखोगे कुछ फाइंडिंग्स के लिए, तो उसको बोला जा सकता है अकाउंटिंग. सी हियर, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस. सी हियर, यहां पे दो तीन शब्द आए हैं. एक तो ये प्रोसेस है. किसकी प्रोसेस है? टू रिकॉर्ड. क्या रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. देखो यहां पे हमें बिजनेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ओनली, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस के उसको ही रिकॉर्ड करना है. माना कि कोई गिफ्ट दे रहा है तो यहां पे कोई फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म नहीं है तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा. सो वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन in the process, and that is called as accounting. It is one step ahead than bookkeeping. Clear? The process of accounting includes identifying, summarizing, classifying, interpreting and reporting the business economic transaction in order to get some useful result to the stakeholder of the business. अभी ये जो है ये कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है अकाउंटिंग की. आपको सिंपल भाषा में क्या याद रखना है? बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है. क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि हमें कुछ यूजफुल रिजल्ट्स चाहिए. ये रिजल्ट्स किसको दिखाना है? तो जो भी बिजनेस के रिलेटेड कोई भी पार्टीज है विच आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स, उनके लिए हमें रिकॉर्डिंग करना है. समझ में आ रहा है? It is a process of summarizing, classifying, interpreting and reporting business economic transaction to get some result which is for the stakeholder of the business. Now on the basis of definition we can find some characteristics of accounting. मतलब accounting जो है वो क्या है? Accounting simply identify the transaction and event. We have to record only economic transaction. It is a process of recording. We have to record the business economic transaction in specific manner. अभी यहाँ पे specific manner means journal entries and preparation of ledger.
We have to classification of account in real, nominal and personal. Summarizing, we have to summarize all the classified and recorded entries. We have to prepare annual financial statement. We have to analyze the financial statement, that is cash flow, fund flow, ratio analysis. We have to interpret on the basis of analysis. We can have some interpretation, and after interpreting the information properly, we have to communicate that information to the stakeholders. It means that interpreted report is to be communicate with this stakeholder in annual reports. Clear? So this is simply the characteristics of accounting. Moving further, the branches of accounting. देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. जब आप अकाउंटिंग के बेसिक्स समझ रहे होते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मायने रखता है ये टॉपिक. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेज. इसके अलावा बहुत सारा है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, बैकफ्लश अकाउंटिंग है, फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है, बहुत सारे अकाउंटिंग है. वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बट the main core branches of accounting are only three, that are financial accounting, cost accounting and management accounting. Clear? Look at here in detail. Financial accounting. Financial accounting is the basic process which enables to record business transaction to get some result टू दी एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब किसी रिजल्ट के लिए अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद में आपको कुछ एक पोजीशन मिलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपने एक रिजल्ट निकाला तो वो क्या बोला जाएगा? दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सी हियर, द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड balance sheet. In simple words, financial accounting is the process of identifying, classifying, analyzing, summarizing and interpreting business economic transaction into some useful result which is helpful for the stakeholders of business organization. मतलब जो सिंपल हमारी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, वो अकाउंटिंग की डेफिनेशन इटसेल्फ फोकसेस ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. द अकाउंटिंग विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मूविंग फर्दर, कॉस्ट अकाउंटिंग. इन सिंपल वर्ड, अकाउंटिंग रिलेटेड विथ कॉस्टिंग. क्लियर? Cost accounting is the branch of accounting deals with cost estimation and cost control. अभी यहाँ पे माना कि कोई बिजनेस है, वो प्रोडक्शन का कर रहे हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बिफोर प्रोडक्शन उनको क्या करना पड़ेगा? कोई भी प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट का एस्टिमेट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? माना कि कोई कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो वो अगर एक कंप्यूटर बना रहे हैं तो उनको पहले से पता होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट कितनी है. तो वो कॉस्ट एस्टिमेट, अगर वो डिसाइड करते कि हमारा कंप्यूटर 25,000 में तैयार हो जाना चाहिए और अगर वो 26,000 लगता है, मतलब क्या हुआ? जो एस्टिमेट था वो गलत हुआ. तो अब वो एस्टिमेट जो 1,000 ज्यादा हो रहा है वो कम कैसे किया जा सकता है? दैट इज कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक. सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज डीलिंग विथ cost estimation and cost control. It includes cost reduction also. See here, in simple term, cost accounting is the branch of accounting which is concerned with the process of accounting and controlling the cost of units produced or service rendered by the business enterprise. Simply, the accounting deals with cost estimation and cost control is cost accounting. Moving further, see here, it estimates cost in advance, helps management in exercising strict control over the cost. अगर कम हो रही है एस्टिमेट से
तो वो बेनिफिट है। अगर एस्टिमेट की कंपैरिजन में एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे उनकी कॉस्ट कम हो सके। सो द मेन एम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट रिडक्शन, क्लियर, सिंपली कॉस्ट कंट्रोल। Going further, management accounting. Now, this is very important as far as concerned to the commerce student for preparation of UGC NET and GSET. आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो मेनली इस टॉपिक से रहेगा, मैनेजमेंट, एडवांस्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंपली द अकाउंटिंग विच इज हेल्पफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। Management accounting is the branch of accounting which is helpful for the management for taking managerial decisions. Clear? See here, the management accountant uses the various techniques and concepts to make the accounting data more useful and reliable for decision making. Simple शब्दों में अगर हम बोल सकते हैं, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी अकाउंटिंग यूज होगा उससे बोला जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट्स एट द पॉइंट वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड्स। मतलब जहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा हो रहा है, जब आप एनुअल अकाउंट्स तैयार कर रहे हो तो जो एनुअल अकाउंट्स तैयार कर रहे हो दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक बार एनुअल अकाउंट तैयार हो जाता है फिर आप उसका एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, तो ये जो है सब वो कहां पे होगा? दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? सो दिस इज the branches of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. See here, some of the content covered in management accounting are financial statement analysis, that is ratio analysis, cash flow analysis, funds flow analysis, comparative statement, common size and trend analysis. It also includes marginal costing, budgetary control, etc. So these are some scopes of managerial accounting. Moving further to the concept of auditing. देखो, अकाउंटिंग जहां पे खत्म होगा वहां से ऑडिटिंग स्टार्ट होगा। अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड, ऑडिटिंग इज टू चेक। अकाउंटिंग क्या है? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सही है कि गलत है वो चेक कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। तो वो जो प्रोसेस रहेगी उसको बोला जाएगा अकाउंटिंग। लुक एट हियर, auditing is the verification of financial position as disclosed by the financial statement. Auditing starts at the point where accounting ends. Accounting जहाँ पे खत्म होगा वहाँ से auditing start होगा. It is an examination of accounts to ascertain whether the financial statement gives true and fair view of financial position and profit and loss of the business. मतलब वो सही है कि नहीं है। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट में दिखाई दी है वो सही है कि गलत है, ये जो काम है ये होगा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, एडिक्वेसी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मतलब जो आपने स्टेटमेंट तैयार किया है दैट इज फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कितना रिलायबल है, कितना एक्यूरेट है और उस पे जो वाउचर्स होंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कितने डिपेंड है, वो सब चेक किया जाएगा। कहां पे? ऑडिटिंग में। द मेन एम ऑफ ऑडिटिंग इज टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मतलब जो एनुअल स्टेटमेंट तैयार किया हुआ है उसकी रिलायबिलिटी चेक करना है, दैट इज द मेन एम ऑफ ऑडिटिंग। वो सही है कि गलत है। क्लियर? सो ये हो गया हमारा ऑडिटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अकाउंट्स इन अ स्पेसिफिक मैनर. ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. लेट्स हैव डिस्कशन ऑफ सम एमसीक्यूज, क्योंकि यहां से जब हम एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. देखो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ नेट और जीसेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे कॉमर्स के रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं. लेट्स डू इट हियर. क्वेश्चन नंबर 1, बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड. बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन स्पेसिफिक डेट,
मिड ऑफ द ईयर, नन ऑफ दिस। तो ये हमें पता है बैलेंस शीट कब बनती है, एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। क्लियर? नेक्स्ट, a good cost accounting system is options. Option A, if it enables management to increase productivity and rationalize the cost structure, if it computes estimates cost only, if it cannot be reconciled with financial accounts, none of the above. So the right answer is option A. A good cost accounting system enables management to increase the productivity and to rationalize the cost. Rationalize the cost structure means proper cost estimate भी होना चाहिए, और अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कॉस्ट रिडक्शन भी होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ अ बैंक इज जनरली कंडक्टेड थ्रू ऑप्शन ए रूटीन चेकिंग, बी काउचिंग, सी बैलेंस शीट ऑडिट, डी नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जहां पे रेगुलरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसका जो ऑडिटिंग है वो कब होता है, वो रेगुलर होता है। सो द ऑडिट ऑफ बैंक इज जनरली कंडक्टेड थ्रू रूटीन चेकिंग। हर रोज इसका ऑडिटिंग होगा, हर रोज चेक किया जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑडिटर इज लायबल फॉर हिज एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। मतलब ऑडिटर जो है वो किसके अकाउंट का ऑडिट करेंगे? नंबर ए क्रेडिटर्स, बैंकर्स, डेटर्स, ओनर्स। यह भी बहुत ही इजी है। द राइट आंसर इज डी, ओनर्स जो होंगे उनके अकाउंट्स का ऑडिट करना है। किसको? ऑडिटर को। क्लियर? नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, देखो ये आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ए डिटेक्शन ऑफ एरर्स, बी टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स, सी डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, डी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। देखो ये जो ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन है वो सभी ऑब्जेक्टिव ही है ऑडिटिंग का, बट द मेन ऑब्जेक्ट इज टू आइडेंटिफाई द रिलायबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो द राइट आंसर इज, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? नेक्स्ट, auditing is compulsory for, this is a question to be asked in many examination. It is a small scale business enterprise, all partnership firm, all joint stock companies, all proprietary concern. So the right answer is all joint stock companies. As per Companies Act 1956 and 2013, it is mandatory for all the joint stock companies to appoint an auditor and to have an auditing of their annual accounts. So these are some important topics related to basics of accounting and auditing. In the next session we will do accounting principles, the most important and confusing topic of accounting and auditing. We will focus on accounting concepts, we will focus on accounting conventions. देखो यहाँ पे आपको तीनों शब्द एक जैसे लगेंगे, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो इसमें डिफरेंस क्या है, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट, stay at home, stay safe. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.